الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید القرآن کورس کا آج ہمارا آخری درس ہوگا انشاءاللہ۔ اس درس میں بھی ہم پچھلے دروس کی طرح پریکٹس کریں گے۔ آخری جو قرآن کی 5 صورتیں ہیں، سورۃ النصر سے لے کے آخری تک، یعنی سورۃ الناس تک ہم آج تلاوت کریں گے، ان کے تجویدی قاعدے جانیں گے اور آپ سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کورس کے بعد ہمارا یہ جو تجوید القرآن کورس کا یعنی سیریز تھا، اس کا اختتام ہوا چاہے گا، اور اس میں جو 15 ہمارے پہلے دروس ہیں، 15 لیکچرز ہے، اس میں ہم نے تجوید کے قاعدے، جو بنیادی قاعدے ہیں، ان کو ڈسکس کیا، مثالوں کے ذریعے سمجھایا، اور اس کے بعد جو سبق نمبر 16 سے لے کے آج تک یعنی 20 تک، یعنی 5 جو دروس ہمارے ہیں، ان کو ہم نے ایز اے پریکٹس لیکچرز کنسیڈر کیا، پریکٹس ہم نے کرائی۔ امید ہے کہ آپ ان دروس کو ذہن نشین رکھیں گے، اور جو قاعدے ہمارے سامنے پیش آئے، جب بھی آپ کسی کی قرض سنیں گے یا خود پریکٹس کریں گے، تو آپ ان قواعد کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کورس کے بعد ہمارا دوسرا سیریز شروع ہوگا، بیسک گرامر قرآن مجید کا، کیسے سیکھیں، کس طرح سیکھیں، وہ بھی اسی طرح ہفتے میں 2 دن ہوگا۔ اسی طرح کا شیڈول رہے گا، تقریباً 30 سے 35 منٹ کی کلاس ہوگی، اور اس میں بھی ہم اسی طرح پریکٹس کریں گے۔ تو آج کا لیکچر ہم شروع کرتے ہیں، تجوید القرآن کو اس کا آخری چیپٹر یا آخری درس، لیکچر نمبر 20۔ آج میں نے جانا کہ جو آخر کے 5 صورتیں ہیں قرآن عظیم کی، یعنی سورۃ الناس سے لے کے یعنی اذا جاء، یعنی سورۃ النصر سے لے کے سورۃ الناس تک، یہ 5 صورت آتے ہیں۔ ان 5 سوروں کی آج ہم تجویدی قاعدوں کے ذریعے پریکٹس کریں گے، اور اس طرح ہم نے چونکہ ابتدا میں سورۃ الفاتحہ کے بارے میں کیا تھا تجویدی انالیسس، اس کے بعد ہم نے سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع پڑھا، پھر سورۃ البقرہ کے آخری آیات پڑھے۔ آج ہم قرآن عظیم کے جو آخری 5 صورت ہیں، ان کی انالیسس کریں گے، ان کو جانیں گے تجوید کے ساتھ۔ قرآن مجید کے ہر ایک صورت کی اپنی فضیلت ہے، قرآن مجید پڑھنے کا اپنا ایک ثواب ہے۔ یعنی کوئی خاص سورہ میں نے اس لیے منتخب نہیں کیا کہ یعنی کوئی خاص وجہ ہو، میں نے اس لیے ان کو کیا تاکہ جو ہم اکثر و بیشتر سورات قرآن عظیم کے نمازوں میں پڑھتے ہیں، ان سوروں کی کم از کم ہمارے سامنے ایک یعنی پریکٹس کے ذریعے آپ کے سامنے ان کو سامنے لایا جائے۔ تو آپ مائک اپنے اوپن کریں گے، اور سب سے پہلے منیر صاحب جو ہوں گے وہ میرے ساتھ پڑھیں گے، اس کے بعد شوکت صاحب پڑھیں گے، اس کے بعد شاہ رخ پڑھیں گے۔ تو ایک ایک سورہ ہم پڑھیں گے اور اس کا تجویدی انالیسس کریں گے۔ جی منیر صاحب، آپ بھی اپنی مائک کھولیں، اور شاہ رخ آپ بھی اپنی مائک کو اوپن کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ منیر صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم. اذا جاء إذا جاء نصر اللہ نصر الله والفتح، والفتح. ہا کو آخر میں ملانا، یعنی ہا کی آواز کو ملانا ہے، اور اگر آپ اس کو آگے بھی پڑھ سکتے ہیں تو والفتح پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر ہمارے ساتھ آیت کے ساتھ ساتھ یہ اوپر لا بھی لکھا ہوا ہے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ ورأيت الناس يَدْخُلُونَ يدخلون فِي دِينِ اللَّهِ في دين الله أفواجا
أفواجا فسبح فسبح بحمد بحمد ربك ربك واستغفر واستغفر إنه إنه كان كان توابا. توابا. शौकत साहब आप इस सूरत को पढ़ें. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح इज़ा जाअ, आ को भी लाइए ना, जा आपने पढ़ा और हमजा के ऊपर जबर पड़ा नहीं, और फतह नहीं पढ़ेंगे, फतह हा को साकिन बनाइए. फिर से पढ़िए इस आयत को. إذا جاء نصر الله والفتح शाबाश. والفتح वल शाबाश. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا अफवाजा, फाजा नहीं, अफवाजा. أفواجا शाबाश. فسبح بحمد ربك واستغفر फिर शाबाश. إنه كان توابا काना के बजाय काना, काना كان काना तव्वाबा. शाबाश. शाहरुख आप पढ़े इसको. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. शाबाश. अब जो सूरतुल, इसका नाम जो है ये सूरतुल नसर है. नाम नसर से निकला है. नसर का मतलब होता है मदद. ये जो सूरत है ये असल में मदनी सूरा है, और मदनी सूरा कहते हैं उस सूरा को जो हिजरत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ. बल्कि ये वो सूरत है जो बहुत आखिर में नाजिल हुआ. उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ ही अयाम तक दुनिया में रहे, उसके बाद वो अल्लाह तबारक ताला के पास चले गए. इस सूरत में 3 आयतें हैं, एक रुकू है. और मदनी जब भी आप देखेंगे तो याद रखिएगा ये हिजरत के बाद जो नाजिल होता है. बहुत सारे लोग कहते हैं कि मदनी कहते हैं जो मदीना में नाजिल हुआ, मक्की कहते हैं जो मक्का में नाजिल हुआ. ये डेफिनेशन सही नहीं है. असल डेफिनेशन ये है, हिजरत से पहले कोई भी सूरा कहीं भी नाजिल हो उसको मक्की कहते हैं, और हिजरत के बाद उसको मदनी कहते हैं. तो ये सूरा मदनी है क्योंकि हिजरत के बाद नाजिल हुआ. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. इज़ा, दाल का जो मखरज है वो है जबान की नोक, और तनाया उलिया जो है ऊपर वाले दांत उनका किनारा, इसलिए ये दाल नरम पड़ा जाएगा. इज़ा है ना, इज़ा, इज़ा नहीं, इज़ा. उसके बाद मुनीर साहब आप बताइए, या में जो ये मद आपको दिख रही है ये कौन सी मद है? मदफरी मदिफरी है. और मदिफरी की कौन सी किस्म है ये? जो मुतसल जो इसी के अंदर है. जाबाश. इसका नाम है मद मुत्तसिल, क्योंकि मुतसल हरफी मद और जो सबबी मद है तभी वहाँ वो एक ही कलमे सेम. में है. एक ही कलमा. अलिफ जो है वो हरफी मद है, और ये सबबी मद इसका जो हमजा है. शाबाश. नसरुल्लाह. देखिए साद जो है इसको पूर पढ़ेंगे या बारीक? पूर क्यों? ये हुरूफे मुस्तालिया में है. याद रखिएगा, मुस्ताल. हमारे पास साद, इसके बाद दाद, उसके बाद ता, उसके बाद रा, यहाँ पर लिख रहा हूं आपके लिए. उसके बाद गैन, गैन है. उसके बाद खा, और उसके बाद कौफ. ये हमारे पास 7 ऐसे हुरूफ है जो हर हालत में पुर होते हैं. तो इसमें साद भी है. तो नस, पुर पढ़ने का मतलब मुंह भर के पढ़ना, होंठ को गोल करना, आवाज को मोटा करना.
नस्रुल्लाहि। अच्छा, रॉ को पुर पढ़ेंगे या बारीक? पुर। पुर पढ़ेंगे, क्योंकि रॉ जो है ये हरूफ मुस्तालिया में नहीं है, मगर एक स्पेशल कंडीशन के तहत जब रॉ पे जबर होगा या पेश होगा तो रॉ को पुर पढ़ेंगे। अच्छा, जो लामी जलाला है, लामी जलाला यानी वो लाम जो अल्लाह में लिखा होगा, लफ्ज अल्लाह में जो लाम है उसको लामी जलाला कहते हैं। नस्रुल्लाहि कैसे पढ़ा जाएगा लामी जलाला, पूरी या बारीक? ये भी पुर पढ़ा जाएगा, क्योंकि लामी पुर। जलाला से पुर। पहले माकबल पेश है, माकबल जबर या हम्म। पेश होगा तो लामी जलाला ऐसे पढ़ते ना, नस्रुल्लाहि। आप देखिए मोटा पढ़ते हैं। उसके बाद वल फतह, ये जो अलिफ यहाँ पर है ये असल में हमजतुल वसल है, ये पढ़ा नहीं जाएगा। बाय द वे आप बताइए, फा जो है ये हरफी शमसी है या हरफी कमरी? हरफ कमरी। ये हरफी कमरी है, क्योंकि लाम जो है इसने छुपाया नहीं, लाम पढ़ा गया। वल फतह। अब यहाँ पर याद रखिएगा आपके पास चॉइस है, क्योंकि आयत है, आयत का मतलब होता है वक्फ करें, मगर आयत के ऊपर जो आप निशान देख रहे हैं ना ला का, इसका मतलब होता है अल वस्लुल ऊला, यानी वक्फ करना ही बेहतर है। इस तरह की कंडीशन में आपके पास चॉइस है कि आप ठहरे या ना ठहरे। अगर आप ठहरेंगे तो ता तो साकिन है ही, हा को भी आप साकिन बनाइए तो पढ़ेंगे वल फतह। हा को आवाज, हा की आवाज को आपको निकालना है, हा की आवाज को आपको निकालना है, वल फतह। ठीक है। अगर आप नहीं ठहरेंगे तो आप पढ़ेंगे वल फतहु। ठीक है, याद रखिएगा ये कैसे पढ़ेंगे, वल फतहु। अगर आप नहीं ठहरेंगे, अगर आप ठहरेंगे क्या पढ़ेंगे, वल वल फतह। फतह। हा वस्ते हलक से निकलता है। उसके बाद वारा आई, रॉ को पुर पढ़ेंगे, जबर है। आई या क्या है यहाँ पर, या साकिन माकबल जबर, या लीन। लीन है, या शाबाश, नरम, वेरी गुड। वारा आई तन्नासा, नून पे तशदीद है, नून मुशद्दद है, नून पे क्या होगा, गुन्ना। गुन्ना। ये गैन से गुन्ना है, गाफ से गुन्ना नहीं, उसका अलग मतलब होता है। क्या होता है गुन्ना का मतलब? नाक में लेंगे इसको। नाक के बांसे में आवाज को ले बांसे। जाना, शाबाश। यद खुलूना, बताइए दाल साकिन है, दाल पे क्या होगा, कलकला। कलकला। 5 हरूफ पे कलकला होता है, कौफ तौ बा जीम दाल। जब ये साकिन होंगे इनका कलकला होगा, तो यद खुलूना। अच्छा, खौफ पुर पढ़ा जाएगा या बारीक? पुर। पुर, क्योंकि हरूफे मुस्तालिया में है, याद रखिएगा ये। अच्छा, खुलूना, वाव साकिन माकबल पेश, वाव क्या है, मद्दा, मध्य असली। उस पे मद असली, मध्य शाबाश, असली। क्योंकि फारी ही नहीं है, क्योंकि उसके बाद हर्फ मद के बाद सबब नहीं है। फी दीनिल्लाह। अच्छा, फी में या के ऊपर सुकून है, या साकिन ये माकबल भी जेर, मध्य असली। मद असली। ये भी मध्य असली। दीनिल्लाह, यहाँ पर भी मद असली। ठीक है। अच्छा, दीन। दीनिल्लाह में लामी जलाला पुर होगा या बारीक? ये बारीक होगा। बारीक होगा, क्योंकि माकबल जो है ना नून के नीचे जेर, उसकी ये वजह से लामी ये जलाला बारीक होगा। अफवाजा। अच्छा शौकत साहब, जरा इसको आप पढ़े अफवाजा को। अफवाजा। माशाल्लाह, मैं आपको ये फा को चेक कर रहा था क्योंकि इसमें गलतियां हो रही थी, मगर माशाल्लाह आपने सही पढ़ा। अफवाजा। अब देखिए, दो जबर जब वक्फ की हालत में आएगा और हम वक्फ करना चाहते हैं, उसमें दो जबर में सिर्फ एक तब्दीली आती है कि एक जबर गायब हो जाता है। ठीक है। अफवा, अब सिर्फ एक ही जबर रह गया, जिम अलिफ जबर जा। तो दो जबर जो है वो साकिन नहीं बनता है, याद रखिएगा। दो जबर जब भी आखिर में आता है वो साकिन नहीं बनता, बल्कि आखिर में उसका एक जबर हट के अफवाजन के बजाय अफवाजा पड़ेंगे। ठीक है। यहाँ पर भी आप वक्फ कर सकते हैं, बेहतर है कि वक्फ करें। उसके बाद फसब्बिह, यहाँ पर हा को वस्ते हलक से निकालिए, बिहम्दी। अच्छा, मीम साकिन के बाद दाल आ रहा है, मीम का कौन सा कायदा है, इजहार। ठीक है, मीम का कायदा याद रखना आसान है। मीम के बाद अगर मीम आ जाए, यानी मीम साकिन के बाद मीम इदगाम, मीम साकिन के बाद बा इख्फा, और बा और मीम के अलावा कोई भी हर्फ मीम साकिन के बाद आए तो इजहार। बिहम्दी, मीम पढ़ा, आगे बढ़ गए। और रब्बिका में रॉ पुर पढ़ा जाएगा या बारीक? बारीक। नहीं, पुर है ना, जबर है ना रॉ पर, कैसे बारीक होगा? बिल्कुल। और बिल्कुल। रब्बी का, इसी तो रब्बी का हम थोड़ी है रब्बी का पढ़े, और रब्बी का और क्या,
क़ा नहीं, ये कैफ है, क़ाफ नहीं। रब्बिका, क्या, ठीक है, बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर। अब यहाँ पर यहाँ पर भी ये जो हमज़तुल वस्ल गिर जाएगा। वस्तग, गईन पर अक्सर क्या होता है कि लोग कलकला करते हैं, इस पे ख्याल रखना है। वस्तग नहीं है, वस्तग, आवाज रोके, गईन को पूर पढ़िए, मगर वक्फ कलकला नहीं करना, क्योंकि गईन हुरूफ़े कुतुबी जद में नहीं है। वस्तगफिर, रा को पूर पढ़ेंगे या बारीक? रा बारीक। साकिन माकबल ज़ेर गया, बारीक पढ़ेंगे, और यहाँ पर हा को साकिन बनाएंगे। ये कौन सा वक्फ है? तो वक्फी मुतलक, 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 मुतलक पे वक्फ किया जाता है। इन्नहु, नून पे गुन्ना होगा, नून मुशद्दद है। काना, यहाँ पर हमारे पास अलिफ पर मद अस्ली है। तव्वाबा, यहाँ पर भी मद अस्ली तव्वा, और बन के बजे बा, क्योंकि मैंने आपको बताया दो जबर वक्त की हालत में, एक जबर गायब हो जाता है, एक जबर रह जाता है। जज़ाकल्लाह खैर। अब हम दूसरे मतलब सूरत पे आएंगे, और दूसरी सूरत में शौकत साहब मेरे साथ रहेंगे, ठीक है? जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा शौकत साहब, अच्छा इसको मुझे चेंज करना है। अब हम पढ़ेंगे ये वाला जो इससे बाद हमारे पास है, इसको मैं गायब करके अब आप हमारे साथ पढ़ेंगे। पहले मैं इसको सबको यहाँ इरेज कर देता हूँ जो मैंने आपको पीछे लिखा था। अब आप पढ़ेंगे मेरे साथ, फिर हम इसी तरह तजवीदी एनालिसिस को ऊपर करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, بسم الله الرحمن الرحيم तब्बत تبت यदा अबी يدا أبي लहबिन व तब, لهب وتب याद रखिएगा, व तब पढ़िए। وتب हाँ, थोड़ा सा बा पे لهب स्ट्रेस, وتب व तब, बा पे स्ट्रेस दे दीजिए, कलकला हाई लेवल का होगा। लहबिन لهب व तब, وتب शाबाश। मा अगना ما أغنى अन्हु عنه मालुहु ماله वमा कसब وما كسب सयस्ला سيصلى नारन ذات نارا ذات लहब لهب वम्रअतुह وامرأته हम्मालतल हतब, حمالة الحطب हम्मा हासिल, हम्मा حمالة लतल الحطب हतब, हतब حمالة الحطب फी जीदिहा في جيدها हबलुम मिन मसद। حبل من مسد जज़ाकल्लाह। मुनीर साहब, या आप इस सूरत को पढ़ें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب वतब, وتبت يدا أبي لهب وتب शाबाश। ما أغنى عنه ماله وما كسب ना कैसाब, बाप यहाँ पर डायरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर आखिर में तशदीद नहीं है ना। इसको पढ़ेंगे कैसाब, सिंपल, कैसाब नहीं, ऊपर तशदीद थी, इसीलिए मैंने इसको बताया कि स्ट्रेस करें। वमा कैसाब, وما كسب सीन को तेज पढ़िए, वमा कैसाब। وما كسب हाँ, आगे बढ़े।
سيصلى نارا سيص يص سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته वो आम नहीं है, वाव को मीम के साथ मिलाइए ना, और अपने आप पर सख्ती मत करें। जब आपने लहब पढ़ा, परफेक्ट हो गया, आप आगे पढ़िए वमरातु। इसको पीछे जाने की जरूरत नहीं, आपके पास तो वक्फ है ना। अब आपने ठहरे, आप आगे बढ़े, वमरातु पढ़े। अगर आप वक्फ नहीं करते और यहाँ वक्फ की अलामत नहीं होती, तब आपको पीछे जाना था। और उससे क्या होगा, जब आपके सांस पे जोर पड़ा तो ये आप वमरातु पढ़ने के बजाय वमरातु पढ़ने लगे, क्योंकि सांस पे जोर है ना, तो उससे गलतियां होगी। अब आपने लहब पढ़ा, काफी है, वह पढ़िए वमरातु। अपने ऊपर कभी भी सख्ती नहीं करनी चाहिए कुरान पढ़ते वक्त। या तो आपकी जो सांस है वो लंबी हो, तब आपके पास यह एक्सपेरिमेंट करें इंशाल्लाह, जैसे बहुत बड़े कारी करते हैं। जब सांस नहीं हो तो कोशिश करें, हमारा जो अव्वलीन फुर्सत में होना चाहिए कि हमारे जो अल्फाज वो सही निकले। ठीक है, अभी हमें वो मतलब ज्यादातर आवाज की तरफ नहीं, बल्कि अल्फाज दुरुस्त करने के ऊपर अभी हमें मशक करनी। जी, وامرأته देखिए वम وام रातु, वम फिर थोड़ा सा आप देरी करते नहीं करना है। इजहार के वक्त वम रातु, बस मीम पढ़े आगे बढ़े। अगर आप वम पढ़ेंगे तो फिर इजहार कहाँ हुआ, वो तो इख्फा हो गया। सीधे पढ़िए वम وام रातु, बस। وامرأته हाँ, वम रातु, حمالة الحطب शाबाश। في جيدها حبل हब من हब हब, مسد वहां पे कलकला करें। फी जीदिहा हबलुम मिन मसद, في جيدها حبل من مسد माशाल्लाह। शाहरुख आप पढ़ें इसको। بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب वतब, ما أغنى جی حضرت वतब, वतब नहीं, वतब। وتب हाँ, थोड़ा सा बा पे देरी करके आगे पढ़ना, ऐसे। तब्बत यदा अबी लहबिन वतब, تبت يدا أبي لهب وتب शाबाश। ما أغنى عنه ماله وما كسب गैन पे कलकला नहीं होता है। मा جی अब حضرت ना, गैन पे कलकला नहीं होता है, ऐसे। ما أغنى अगना पढ़ रहे हैं ना, गैन पे कलकला आप कर रहे हैं, ऐसे पढ़ना है। मा, ما أغنى थोड़ा सा तवज्जो रखे। मा جی अगना, मा अगना अन्हु मालुहु वमा कसब, ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب दाल को नरम पढ़िए। وامرأة राता, राता, जाता नहीं, राता। हाँ, سيصلى सयस, نارا ذات जिसको मैं, ذات देखें जो मैं बता रहा हूँ उसी को तवज्जो दे। आप पीछे जाके ना, अब उसको तो ठीक पढ़ेंगे, पिछले गलत हरफ को गलत पढ़ेंगे। सयसला नहीं, सयसला, सौद है ना ये, सीन और सौद में फर्क कीजिए। मैंने आपको बताया राता पढ़िए, आप पीछे चले गए। राता लहब पढ़िए इसी को। ذات لهب हाँ, उसको तवज्जो करें जिसको मैं आपको बता रहा हूँ। आप उसको तो सही पढ़ रहे हैं, जब पीछे जा रहे हैं उसको फिर गलत कर रहे हैं। आप पढ़िए सयसला से। سيصلى सौ नहीं, सौ, देखिए सीन और सौद में क्या फर्क है। देखिए ऐसे पढ़ना है, सयस, देखिए थोड़ा सा तवज्जो रखें। सयसला, سيصلى जी, सीन को अलग तरीके से पढ़ना है, सौद को अलग, और दोनों एक जैसे और एक ही लफ्ज में है, तो उसको थोड़ा ट्रिकी पढ़िए। सयसला, सयसला, سيصلى फिर से पढ़िए। سيصلى
सौद पे कलकला नहीं करना। देखिए एक सिफत करके दूसरी सिफत नहीं मिलानी है, ऐसे पढ़ना है। आराम से पढ़े। सयस्ला, سيصلى शाबाश। نارا ذات لهب दाल को नरम पढ़े, रात जबान की नोक, ऊपर वाले जो दांत है ना उनका किनारा, जब आप इसको मिलाएंगे ना इसके साथ तनाए उलिया के किनारे, ये खुद ब खुद नरम हो जाएगा। राता, जाता नहीं पढ़ा, वो तो जा हो गया ना। दाल और जा में क्या, ذات हाँ क्या है? ذات शाबाश لهب शाबाश। وامرأته حمالة الحطب अगर आपने आप उस दूसरे हर्फ के साथ इसको मिलाया ना तो फिर हम्मा पे वक्त ना करें, ऐसे पढ़े। वम्रअतुहु हम्मालतल हतब, ये एक ही फिर लगना चाहिए। अगर आप वम्रअतुहु भी पढ़ेंगे फिर ठहरेंगे भी, ये गलत है। या तो आप पढ़े वम्रअतुहु, फिर आप ठहरें, फिर पढ़े हम्मालतल हतब। शाबाश। وامرأته حمالة الحطب लतौल नहीं, ता है ये। ता तो में फर्क नहीं कर रहे हैं, इसी तरह सीन स्वाद में फर्क करना है। और ये लहनी जली है। लहनी जली का मतलब बड़ा बड़ा बहुत बड़ी गलती है ये। हरूफ जो है ना उसको वैसे ही अदा करना है जो उसका मखरज है। सीन और स्वाद में फर्क करना है, ता और तो में फर्क करना है। अगर आप फर्क नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी गलती है तजवीद के हिसाब से। अगर आप गुन्ना नहीं कर रहे हैं, इख्फा नहीं कर रहे हैं, ये छोटी गलतियां हैं। मगर अगर आप हरूफ को उलट पुलट करेंगे ना, सीन को स्वाद पढ़ेंगे, दाल को जा पढ़ेंगे, ता को तो पढ़ेंगे, इसको लहनी जली कहते हैं। यही तो तजवीद है, इनको सीखना है। और जल्दी ना करें, आराम से पढ़े। हम्मालतल हतब, हम्मा। अभी आप आवाज पे ज्यादा जोर न दें, यानी आपकी आवाज खूबसूरत माशाल्लाह है, मगर अभी आप कोशिश करें अल्फाज को सही अदा करने की। जैसे हम्मालतल हतब, हतब पढ़िए। حمالة الحطب शाबाश। في جيدها حبل من مسد अब देखिए यहां पर भी आपने वही गलती की। जीद हा में गोल हा है और हबलुम में हा है, वस्त हलक वाला हा, इनमें फर्क होनी चाहिए। फी जीदिहा हबलुम मिन मसद, यानी हमें क्या करना في है? جيدها जी, في جيدها حبل من مسد सौद नहीं, सीन से है भाई। मसाद, مصد साद, मसाद, सौद की तरफ مصد साद। हाँ शाहरुख, आपकी आवाज अच्छी है, पिकअप भी अच्छा करते हैं, बट मैंने ये गलती आपकी नोट की है कि आप अल्फाज को, यानी उनकी आवाज को एक दूसरे के साथ मिलाते हैं। उन पे आप तवज्जो करें। सीन और सौद में फर्क है, ता और तो में फर्क है, गोल हा और बड़ी हा उसमें फर्क है। ठीक है। और जो हर पुर पढ़ा जाता है उसको पुर पढ़े, जो बारीक पढ़ा जाता है उसको बारीक पढ़े। बाकी माशाल्लाह आप सही पढ़ रहे हैं। तो इसमें तब्बत यादा में मैं मोटे मोटे कायदे आपको बताऊं। हमारे पास तब्बत के बाद यादा, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना दाल के साथ अलिफ, ये मध्य मुनफसिल है। अबी लहा ब्यों, दो जेर के बाद वाव, इसको मिलाएंगे, इदगाम करेंगे, इदगाम ये बगुन्ना। लहा ब्यों तब, मैंने आपको क्यों बताया यहाँ पर जोर देना है, इसको कहते हैं कलकला अल कुबरा। आपको पता होना चाहिए कलकला की तीन किस्में हैं। और सबसे जो हाई लेवल का कलकला है वो तब होता है जब हरूफ कुतबी जद में कोई भी हरफ पे तशदीद हो और उसको आपको साकिन बनाना हो वक्त की हालत में। यहाँ पर देखें तब, इसीलिए इसको हम कुबरा कहते हैं। कुबरा कहते हैं जो बहुत बड़ा कलकला हो। उसके बाद मा, यहाँ पर अलिफ पर जो मद है ये भी मद मुनफसिल, हरफ मद और सब मद अलग अलग कलमे में। अगना में मैंने आपको बताया गैन पे अक्सर यहाँ गलती होती है, लोग कलकला करते हैं जबकि कलकला गैन पर नहीं होता। एंड हु, नून साकिन के बाद गोल हा, यहाँ पर नून पे इजहार होगा, इजहार हलकी। मालूहु व मा कसब, बा पे कलकला, नॉर्मल कलकला, बा साकिन बनेगा। सयस्ला, यहाँ पर फर्क करना है, सीन और स्वाद एक ही कलमे में है। सा यस्ला, स्वाद को पुर पढ़ेंगे, सीन को पुर नहीं पढ़ेंगे। अच्छा दोनों को तेज पढ़ेंगे।
دونوں کے اندر ایک اور صفت ہے جس کو صفیر کہتے ہیں. صفیر کا مطلب تیز پڑھنا. نارن دو زبر کے بعد ذال اخفا ہوگا, چھپائیں گے نون کی آواز کو, دو زبر کو. ذات لہب, لہب با پہ کلکلا کریں گے اگر ٹھہریں گے. اگر آپ نہیں ٹھہرنا چاہتے کیونکہ یہاں پر صلا بھی ہے, جیم بھی ہے, یہ تمام پروموٹ کرتے ہیں کہ آپ دوسرے حرف کے ساتھ مل جائے, اس صورت میں یہاں پر ادغام بغنہ ہوگا, کیونکہ لہبیوں دو زیر واو کے ساتھ ملے گی, ادغام بغنہ. وامرأتہ, وم میں الف نہیں پڑھنا, حمزۃ الوصل کو ہٹائیں گے اور را کو پر پڑھیں گے, اور رأتہ بہتر ہے کہ یہاں وقف کرے, وقف مطلق پہ وقف کیا جاتا ہے. حما میم پہ غنہ کیونکہ مشدد. لتلحطب, طب تو کو پر پڑھیں گے, با کو کلکلا کریں گے, اور حا جو ہے یہ حرف قمری ہے کیونکہ لام کو اس نے چھپایا نہیں. فی جیدہا, فی جی ہا تینوں پہ مد اصلی. حبلم با پہ قلقلہ, دو پیش کو میم کے ساتھ ملائیں گے, ادغام بغنہ. میم مسد, نون ساکن کے بعد میم, ادغام بغنہ پھر سے, اور دال کو ساکن بنائیں گے تو قلقلہ کریں گے, مسد. ٹھیک ہے, اس طرح ہمارا تبت یدا بھی کمپلیٹ. اب شاہ رخ آپ میرے ساتھ سورۃ الاخلاص پڑھیں گے, ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو اللہ احد, قل هو الله أحد. احد أحد. دال باریک, حا باریک, الف باریک یعنی حمزہ باریک. احد, أحد. اگر کا احد پڑھے گا غلط کرے گا. احد, احد. قل قاف پر پڑھیں گے. هو اللہ, یہاں پر لام جلالہ پر پڑھیں گے. احد, احد نہیں پڑھنا, احد, احد ایک واحد. ٹھیک ہے, أحد. شاباش, نارمل طریقے سے. اللہ الصمد, الله الصمد. شاباش. یہاں پر اللہ میں لام جلالہ پر, صاد بھی پر پڑھا جائے گا, حروف مستعلیہ. اللہ الصمد, صمد, صمد دال پہ قلقلہ. لم یلد لم يلد ولم یولد ولم يولد ولم یکن لہ ولم يقل له کفوا احد. كفوا أحد. احد, احد ہاں کی پہ مشق کریں. دیکھیے قل میں قاف کو أحد. پور پڑھیں گے, حروف مستعلیہ. هو اللہ میں لام جلالہ پور ما قبل زبر. احد دال کو ساکن بنائیں گے قلقلہ. اللہ الصمد لام جلالہ پور, صاد پور, دال پہ قلقلہ. لم یلد میم ساکن کے بعد یا, یہاں پر اظہار ہوگا, اظہار شفوی, میم کا اظہار. یلد ساکن ہے, یہاں پر آپ کو اجازت ہے ٹھہرے آگے بڑھے. ولم یولد واو ساکن ما قبل پیش, واو مدہ مد اصلی. لد ساکن یہاں پر قلقلہ ہوگا دال پہ. ولم میم ساکن کے بعد یا اظہار. یکن لہو نون ساکن کے بعد لام, یہاں پر ادغام ہوگا مگر بلا غنہ, غنہ نہیں ہوگا. لہو کفوان, اکثر غلطی ہوتی ہے لوگ پڑھتے ہیں کفوان, یہ کفوان ہے, کفوان احد. ٹھیک ہے, کفوان میں دو زبر کے بعد حمزہ اظہار, اور احد میں دال کو ساکن بنا کے قلقلہ. منیر صاحب آپ سورۃ الاخلاص کو پڑھیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شاباش, بسم الله الرحمن الرحيم. شاباش. قل هو الله أحد. هو اللہ, واللہ نہیں. قل هو الله أحد. احد زیادہ الله الصمد. زیادہ لمبا قلقلہ نہ کرے, نارمل قلقلہ ہے نا, ایسے. قل هو اللہ احد, احد نہیں پڑھنا کیونکہ یہاں نارمل قلقلہ ہے, یہاں کون سا تشدید ہے. اسی طرح اللہ الصمد, سمپل. مد نہیں پڑھنا, وہ پھر لمبا ہو جائے گا. الله الصمد. مد نارمل. لم يلد. لد آپ لمبا کر رہے ہیں, آپ قلقلہ جو ہے کافی زیادہ بڑا کر رہے ہیں, حالانکہ نارمل قلقلہ ہے, ساکن ہے. لم یلد ولم یولد,
ایگزیجریٹ اگر ہم کریں گے نا وہ بھی غلط ہوتا ہے. لم يلد ہاں ولم يولد ہاں شاباش، نارمل طریقے. ولم يكن له كفوا أحد. کفوان احد، اگر تھوڑا سا بھی یہ ٹھہریں گے نا یہ بنے گا کفوان احد، یہ اظہار کے بجائے اخفا میں چلا جائے گا. یعنی کوشش کریں الفاظ کو ٹھہرے، جہاں اخفا کرنا وہاں اخفا کرنا، جہاں اظہار کرنا وہاں اظہار کرنا. جی شوکت صاحب آپ اس کو پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہاں پہ شاباش. قل هو اللہ احد. احد، ہا کی مشق، جی سر. ہا کی مشق آپ کریں. ہا جو ہے نا وسط علق والا، اس پہ مشق آپ کریں. قل ابھی هو ادا اگر نہیں احد ہو رہا، ادا اگر نہیں ہو رہا کوئی مسئلہ نہیں، کوشش کریں. اللہ الصمد، شاباش. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کفو، فا پہ احد. کفوان احد. جزاک اللہ خیر. کفوا احد. اچھا آخری دو سورہ میں پڑھوں گا، اب آپ دیکھیں گے کیونکہ ہمارے پاس وقت زیادہ نہیں ہے. میں یہ دو سورات پڑھوں گا، آپ دیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. اس طرح ہم نے آج الحمدللہ اپنا تجوید کا جو ایک کورس تھا اس کو کمپلیٹ کیا. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں ایک نئے کورس کے ساتھ، بیسک عربک گرامر. تب تک کے لیے اللہ حافظ. امید ہے کہ آپ کو یہ چیزیں